کبھی ایک وقت تھا جب رات کے 8 بجتے ہی ہر گھر میں بی بی سی سیربین کی آواز گونجتی تھی۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں سائمہ علی۔ اردو شام 4 بجے کی خبریں۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں احمد رضا۔ ہم نے اسی آواز کے ساتھ آنکھ کھولی اور اسی سے دنیا کو سمجھنا سیکھا۔ حالت حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا آداب۔ حالت حاضرہ کے پروگرام میں آج آپ صرف امریکہ کو نہیں چین کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، صرف امریکہ کو ہی نہیں امریکہ اور ایران کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، یہی نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی سی اردو شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر اپنی ریڈیو نشریات سیربین آج 31 دسمبر سے بند کر رہا ہے۔ سامع کا سوال: یہ کیوں بند ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ جناب یہ کام مت کیجیے۔ مگر ہم نے طے کیا کہ یہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یوں پیدا ہوا زی بی سی سیربین۔ 16 دسمبر کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ یوکرین کا پہلی بار زیر سمندر ڈرون سے روسی آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بنڈائی بیچ پر حملہ آور کا مقابلہ کرنے والے احمد الاحمد کے لیے بنائے گئے فنڈ میں $10 لاکھ سے زائد رقم جمع۔ پاکستان کے صوبے سندھ کی پولیس کا کہنا ہے کہ بس سے اغوا کیے گئے تمام مسافر بازیاب کروا لیے گئے۔ 25 آدمی بالکل موریشیس کے نزدیک سے لے گئے ڈاکو۔ یہ ڈرائیور کا شیشہ توڑ دیا انہوں نے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے پریشان ہیں۔ 17-18 بندے لے گئے ہم لوگوں کا۔ ابھی یہ لیڈیز کو چھوڑا ہے، لیڈیز بیٹھے ہوئے تھے۔ 17-18 بندے ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ ٹرمپ کا بی بی سی پر ہتک عزت کا مقدمہ، $5 ارب ہرجانے کا مطالبہ۔ نتیش کمار فوری استعفیٰ دیں۔ مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا سامنا۔ آدتیہ کمار سنگھ۔ پاکستان میں منہ کا کینسر خطرناک حد تک بڑھ گیا، نوجوان بھی متاثر ہونے لگے۔ میں ایک اچھے چہرے والی خاتون تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ کسی ایسی کنڈیشن میں دیکھوں جس سے مجھے خود دکھ پہنچے۔ جانیے کیا اسکرین پر مطالعہ انسانی دماغ کو بدل رہا ہے۔ سائنسی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام دماغ پیدائش کے وقت ایسے نظام کے ساتھ آتا ہے جو ہماری آنکھوں کو دیکھنے اور ہمارے ووکل کارڈز کو آواز پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ سنیے غلامی سے تخت دلی تک گھومتی قطب الدین ایبک کی حیرت انگیز داستان۔ قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں خاندان غلامان کا بانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والے 600 سال یعنی 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی تک مسلمان سلاطین اور بادشاہوں کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس SBU کا دعویٰ ہے کہ اس نے نووارسک کی بندرگاہ پر ایک خصوصی آپریشن میں پہلی بار زیر آب ڈرون سب سی بیبی کا استعمال کرتے ہوئے روسی آبدوز وارشوانکا کو تباہ کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، تاہم روس نے سوموار کی شام ہونے والے اس نقصان کی تردید کی ہے۔ SBU کا دعویٰ ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں روسی آبدوز کو شدید نقصان پہنچا اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آبدوز وارشوانکا پر کیلیبر نامی کروز میزائل کے 4 لانچر نصب تھے، جنہیں روس یوکرین کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روس نے آخری بار یوکرین پر ان میزائلوں سے 13 دسمبر کی رات کو حملہ کیا تھا اور روسی فوج نے بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین سے انہیں لانچ کیا تھا۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق ان میں سے 9 کو مار گرایا گیا تھا۔ 3 ہفتے قبل یعنی 25 نومبر کی رات بھی روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیو پر درجنوں کیلیبر میزائل داغے تھے، جس میں 7 افراد ہلاک اور 1 بچے سمیت 21 افراد زخمی ہوئے تھے۔
SBU ने एक बयान में कहा है कि नोवार्सिस्क में इस आबदोज की तबाही एजेंसी के 13वें डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री काउंटर इंटेलिजेंस और यूक्रेन की नेवल फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में हुई है। रूस ने SBU के बयानात पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग की हिमायत करने वाले रूसी फौजी नुमाइंदे यूरी कोटियोनोक ने बंदरगाह से आने वाली फुटेज पर मोहतात अंदाज में तबसरा किया, लेकिन इस हमले की तरदीद नहीं की। सिडनी के बुंडाई बीच पर मुसल्ला हमला आवर का मुकाबला करने वाले हीरो अहमद अल अहमद के लिए कायम किए गए फंड में अब तक $10 लाख से ज़्यादा रकम जमा हो चुकी है। उनके लिए बनाए गए गो फंड मी फंड में अब तक $10,58,000 से ज़ायद रकम जमा हो चुकी है और इसके मज़ीद बढ़ने के भी इम्कानात हैं। गो फंड मी की वेबसाइट के मुताबिक इस फंड में सबसे ज़्यादा रकम $99,999 एक अमरीकी करोड़पति शख्सियत ने जमा करवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक फलों की दुकान के मालिक अहमद अल अहमद बुंडाई बीच पर होने वाले हमले के वक्त इत्तफाकन उस मुकाम पर मौजूद थे। वो इस इलाके में एक दोस्त के हमरा कॉफ़ी पीने गए थे। अहमद अल अहमद के वालिद मोहम्मद फ़तेह अल अहमद के मुताबिक उनके बेटे ने अपने जज्बात, अपने ज़मीर और इंसानियत के लिए हमला आवर का मुकाबला किया। I feel pride and honor because my son is a hero of Australia. There isn't a single media agency in the world that hasn't published what he did. All the way to President Trump thanked him for what he did. Very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So, very brave person who's right now in the hospital. न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस ने हस्पताल में अहमद की अयादत की और उन्हें एक हकीकी हीरो करार दिया। हमले के बाद अवाम की बड़ी तादाद खून के अतियात देने के लिए सामने आई है। लाइफ ब्लड ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 50,000 अफराद ने खून अतिया करने के लिए अपने नामों का इंदराज कराया है। इदारे का कहना है कि सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ 7,810 अफराद ने खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अतिया किए। खून अतिया करने का इससे कबल बड़ा रिकॉर्ड फरवरी 2009 में ब्लैक सैटरडे के मौके पर आग लगने के वाक़े के बाद कायम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि सिडनी के बुंडाई साहिल हमले में मुलव्वस मुबैना हमला आवर नवीद अकरम अब कोमा से बाहर आ चुके हैं और वो होश में आकर पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। इन हमला आवरों की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और उनके 24 साला बेटे नवीद अकरम के नाम से हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान साजिद जाए वक़ूए पर ही मारे गए थे, जबकि नवीद को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान लोग बुंडाई पवेलियन में जमा हो रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन की याद में फूल रखे गए हैं। इन हमलों में मारे जाने वाले शहरियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों ने शमें भी रोशन की हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध की पुलिस ने कहा है कि घोटकी गड्डो कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर बस पर हमले के बाद अगवा किए गए तमाम मुसाफिर बाजियाब करा लिए गए हैं। DSP ओबाडो अब्दुल कादिर सोमरो ने BBC को बताया कि 10 मगवियों को कच्चे जबकि 3 को पक्के के इलाके से बाजियाब कराया गया है। पुलिस अफसर के मुताबिक एक लाश मिली है जिसके बारे में खदशा है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट सर्विस से कंप्यूटराइज्ड लिस्ट मंगवाई गई थी ताकि इस पर सवार मुसाफिरों की तफसीलात मालूम हो सकें। उनके मुताबिक CCTV फुटेज में भी देखा गया है कि कुल 14 मुगवी थे। पुलिस के मुताबिक डाकू इस वक्त पंजाब के कच्चे इलाके कराची कच्चा की तरफ फरार हैं। यहाँ एक मुसल्लस बनती है जिसमें रहीम यार खान, कश्मोर और घोटकी के कच्चे का इलाका शामिल है और आगे दरियाई इलाके में जजायर हैं जहाँ ये छुप जाते हैं। पुलिस का कहना है कि एक तरफ धुंध है और दूसरी तरफ लाखों एकड़ पर गन्ने की काश्त है, जिसकी वजह से डाकुओं की तलाश में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस ड्रोन्स और पैदल एहलकारों की मदद से इन डाकुओं को तलाश कर रही है। DSP के अंदाजे के मुताबिक कुछ डाकू जख्मी भी हुए हैं। 2 जख्मियों को ओबाडो अस्पताल पहुंचाया गया है। कोयटा के रिहायशी करीम बख्श ने बताया कि वो छुट्टियों पर कोयटा से राजनपुर दोस्तों के पास आए थे और गुज़िश्ता शब वापस जा रहे थे। बस चलने में तकरीबन 20-25 मिनट बाद डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बस के शीशे टूट गए। उनके मुताबिक इसके बाद डाकू गाड़ी में सवार होकर लोगों से मोबाइल फ़ोन और पैसे ले गए और तशद्दुद भी किया। करीम बख्श ने कहा कि डाकू हमें अपने साथ ले गए और ये मालूम नहीं कि वो हमें कहां कहां ले जाते रहे। इसके बाद पुलिस और रेंजर्स आ गई और मुकाबला हुआ, जिसके बाद हमें रिहाई मिली। 25 आदमी
बिल्कुल मुरीशाख के नजदीक से ले गए डाकू। ये ड्राइवर का शीशा तोड़ दिया उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, बच्चे परेशान हैं। 17-18 बंदे ले गए हम लोगों का। अभी ये लेडीज को छोड़ा है, लेडीज बैठे हुए थे। बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है, 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे। बाकी लेडीज 4-5 बैठे हुए थे, हम भी लेडीज के साथ बैठे हुए थे, हमको छोड़ा है। बाकी हम लोगों को बंदे ले गए। फायरिंग पूरा घंटा स्टार्ट था हम लोगों को। दूसरी जानब पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा और मुल्क के दीगर शहरों के दरमियान ट्रेन सर्विस आज मुअत्तल कर दी गई है। महकमा रेलवेज के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई है। एहलकार का कहना है कि न सिर्फ बैनुल सूबाई ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई है, बल्कि कोयटा और बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन के दरमियान मुसाफिर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। ख्याल रहे कि कोयटा से पंजाब और सिंध के दरमियान पहले मुतअद्दिद ट्रेनें चलती थीं, लेकिन साबिक आमर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल की खराबी और फिर कोरोना की वबा के बाद इनकी तादाद में कमी कर दी गई थी। इस वक्त कोयटा और दीगर शहरों के दरमियान 3 मुसाफिर ट्रेनें चलती हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। इनमें जाफर एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई पेशावर तक जाती है, जबकि बोलान मेल हफ्ते में 2 रोज़ कराची और कोयटा के दरमियान चलती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैनोरामा की एक दस्तावेजी फिल्म की एडिटिंग पर बीबीसी के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। फ्लोरिडा में जमा कराई गई अदालती दरखास्त के मुताबिक ट्रंप ने बीबीसी पर जानबूझकर बदनीयती और धोखाधड़ी से उनकी तकरीर को इस अंदाज में पेश करने का इल्ज़ाम लगाया है जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप ने हद तक के इज्जत और सहाफ़ती ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर $10 अरब हर्जाने का मुतालबा किया है। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बीबीसी के एक अंदरूनी मेमो का हवाला देते हुए दावा किया कि पैनोरामा प्रोग्राम में ट्रंप की तकरीर के 2 मुख्तलिफ हिस्सों को एडिट करके यूं जोड़ा गया कि वो जनवरी 2021 के कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई करते दिखाई दें। इस मामले के बाद बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री में गलती तस्लीम करते हुए माजरत की, ताहम हद तक इज्जत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तनाज़े के नतीजे में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डिबोरा टर्नस ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे इदारे की तारीख का एक गैर मामूली बहरान करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने रद्द-ए-अमल में इस्तीफ़ों का खैर मकदम करते हुए बीबीसी पर अपनी तकरीर में तहरीफ और अमरीकी सदारती इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम दोहराया। ये मुकदमा आलमी मीडिया, आज़ादी सहाफ़त और इदारती गैर जानिबदारी पर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। इंडियन रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब ज़बरदस्ती उतारने के इल्ज़ाम के बाद शदीद सियासी और अवामी तनकीद का सामना कर रहे हैं। अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वाक़े को नाकाबिले माफ़ी करार देते हुए नीतीश कुमार से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। ये वाक़या पीर को वज़ीर आला ऑफिस में डॉक्टर्स को तकर्ररनामे देने की तकरीब के दौरान पेश आया था। आदित्य कुमार सिंह, नुसरत परवीन। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस और बयानात के बाद कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस अमल को आईनी हुकूक, मजहबी आज़ादी और ख़वातीन की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ करार दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि आइन हर शहरी को मजहबी रिवायात पर अमल की आज़ादी देता है, जबकि एक रियासत के वज़ीर आला की जानिब से इस तरह का रवैया तशवीशनाक है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात बीजेपी ने अपोजिशन पर दोगले मयार का इल्ज़ाम लगाते हुए तनकीद को सियासी करार दिया है। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के माजी के मुतनाज़ा रवैयों को भी दोबारा मौजूए बहस बनाया जा रहा है, जबकि अवामी हलकों में इस इक़दाम को ख़वातीन के वक़ार और मजहबी एहतराम से जोड़ा जा रहा है। सामीन, पाकिस्तान में मुंह का कैंसर मर्दों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर बन चुका है, जबकि ख़वातीन में छाती के कैंसर के बाद ओरल कैंसर की शरह दूसरे नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक पान, छालियाँ, गुटखा, निस्वार के साथ साथ ई सिगरेट का इस्तेमाल भी मुंह के कैंसर की बड़ी वजह बन रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि तशवीशनाक अमर यह है कि अब नौजवान भी तेज़ी से ओरल कैंसर का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ कराची में हर साल तकरीबन
20,000 नए ओरल कैंसर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो एक संगीन सेहत आमा का मसला बन चुका है। मजीद जानकारी आसिया अंसर से।
साहब ने दिया, मेरी बहन ने दिया। सामीन, पढ़ना हमें बज़ाहिर एक फितरी सलाहियत महसूस होती है, मगर हकीकत ये है कि इंसानी दिमाग को इस काबिल होने में हज़ारों साल लगे। इस तवील अमल ने दिमाग की साख्त और इसके काम करने के तरीके में बुनियादी तब्दीलियां पैदा की। माहिरीन का कहना है कि अब स्क्रीन और स्मार्टफोन पर पढ़ने की बढ़ती हुई आदत एक बार फिर दिमाग के अंदाज़े कार को मुतासिर कर रही है। डिजिटल स्टडी तवज्जो, इर्तिकाज़ और गहरे फहम के तरीकों को बदल रही है, जिसके असरात ख़ुसूसन नई नस्ल में ज़्यादा नुमाया हो रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इस वीडियो पर क्लिक करने से आपके दिमाग के वो हिस्से फ़ाल हुए हैं जिन्हें तैयार होने में हज़ारों साल लगे। ये वो हिस्से हैं जो पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। हम जुबान को कुदरती समझते हैं और क्योंकि पढ़ना तहरीरी जुबान है इसलिए ये भी कुदरती होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी कुदरती अमल नहीं है। साइंसी मुताले से पता चलता है कि एक आम दिमाग पैदाइश के वक्त ऐसे निज़ाम के साथ आता है जो हमारी आंखों को देखने और हमारे वोकल कॉर्ड्स को आवाज़ पैदा करने के काबिल बनाता है, लेकिन इसमें पढ़ने की सलाहियत फितरी तौर पर मौजूद नहीं है। इर्तिकाई पैमाने पर देखा जाए तो हमारे दिमाग को एक मखसूस पढ़ने वाला दिमाग बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। इसीलिए पढ़ने का नेटवर्क बनाने के लिए हम दिमाग के वो हिस्से इस्तेमाल करते हैं जो तस्वीर और आवाज़ की प्रोसेसिंग, जुबान, तवज्जो और जज्बात से मुताल्लिक हैं। सुमेरियाई क्यूनिफॉर्म के अलामात को दुनिया की इब्तदाई तरीन तहरीरी निज़ामों में शुमार किया जाता है, जिनकी तारीख तकरीबन 3300 साल कबल मसीह तक जाती है। इसी दौर में मिस्रियों ने भी अपने हायरोग्लिफिक्स तैयार करना शुरू कर दिए थे। वक्त के साथ साथ अलामात में तब्दीली आई। जितना हम पढ़ते और लिखते गए वो उतनी ही पेचीदा होती गईं और आखिरकार वो हरूफ और निशानात बन गईं जिन्हें हम आज पहचानते हैं। अब साइंसदान जानते हैं कि पढ़ना दिमाग को फाल करता है ताकि हरूफ और अल्फाज आवाज़ों और मानी से जुड़ जाएं। Reading is really a whole brain process. पढ़ना हकीकत में पूरे दिमाग का प्रोसेस है। इसमें दिमाग के चारों लूप्स फाल होते हैं। पढ़ने वाला दिमाग बनाने का अमल दिमागी सरगर्मी से लेकर दिमाग की साख्त और उसके रवाबित तक हर चीज को बदल देता है। Structure and brain connectivity. और जो जुबान हम पढ़ते हैं वो भी हमारे दिमाग की साख्त को मुतासिर करती है। चीनी हरूफ मिसाल के तौर पर लोगोग्राफिक निज़ाम की एक मिसाल है। हर चीज़ या ख्याल को एक अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, ना कि हरूफ तहजी के मजमूए से। तहकीकात से पता चलता है कि लोगोग्राफिक तहरीरी निज़ाम सीखने से दिमाग के वो हिस्से फ़ाल होते हैं जो हरूफ तहजी पर मबनी ज़ुबान जैसे अंग्रेज़ी सीखने के दौरान इस्तेमाल नहीं होते। इस अमल में बसरी या विजुअल यादाश्त और बसरी रब्त से मुतल्लिक हिस्से ज़्यादा काम करते हैं। ये नज़रिया उस वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब साइंसदानों ने एक मरीज़ का मुतालिया किया जो चीनी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानें जानता था। इस शख्स को शदीद फॉलेज हुआ जिसने दिमाग के कुछ हिस्सों को मुतासिर किया जिसमें चीनी पढ़ने की सलाहियत वाला हिस्सा भी था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी अंग्रेज़ी पर महारत बरकरार रही। It's a beautiful example of how the brain's ये दिमागी सर्किट्स का एक खूबसूरत मुजाहरा है कि वो किस तरह चीनी ज़ुबान की ज़रूरियात को ज़ाहिर करते हैं, जिसके लिए लाजमी तौर पर ज़्यादा विजुअल मेमोरी और इन पेचीदा खूबसूरत इलामात या हरूफ की विजुअल प्रोसेसिंग दरकार होती है। intricate symbols or characters. जो भी ज़ुबान हो, पढ़ना ना सिर्फ दिमाग पर असर डालता है बल्कि ये हमारे जिस्म पर भी असरअंदाज होता है। हम किरदार की घबराहट या दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, और मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उसे जज्बाती तौर पर महसूस करते हैं, बल्कि ये हकीकत में जिस्मानी सतह पर भी होता है। मिसाल के तौर पर इंटीरियर इंसोला दिमाग का वो हिस्सा है जो मैदे की हरकत, मतली, दर्द और बेआरामी यानी एम्पैथी के एहसासात को कंट्रोल करता है, और यही हिस्सा हमदर्दी के कई अमलों से भी जुड़ा होता है। और दिमाग आसानी से ढल जाता है। शवाहिद से जाहिर होता है कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ के नतीजे में पहले ही तब्दील हो रहा है। फ़ोन या टैबलेट पर पढ़ना आमतौर पर एक पैसिव स्क्रॉलिंग होती है जो अक्सर पैगामात और अलर्ट से रुकती रहती है। जब हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो उमूमन सरसरी नज़र डालते हैं, और जब हम सरसरी पढ़ते हैं तो गलत मालूमात का शिकार होने का इम्कान बढ़ जाता है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं उस पर सोच सकें, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद यही है कि हम अपने सामने आने वाली मालूमात का गहराई से तज्जिया और सोच विचार कर सकें। कुछ तहकीकी मुतालियात ये भी जाहिर करते हैं कि जो बच्चे कम उम्री से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो बाद की ज़िंदगी में स्कूल में अच्छी कारकर्दगी कम दिखाते हैं। At 8 years of age,
the amount of digital exposure. 8 سال کی عمر میں ڈیجیٹل ایکسپوجر کی مقدار ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، ایگزیکٹو فنکشن، پروسیسنگ اور تعلیمی کارکردگی پیش گوئی کرتی ہے، اور یہ تعلق منفی ہے۔ جتنا زیادہ ڈیجیٹل استعمال اتنی ہی خراب تعلیمی کارکردگی۔ اگر آپ تصور کریں کہ دماغ مسلسل توجہ ہٹانے اور حد سے زیادہ محرکات کا شکار ہے تو وہ ایک محرک سے دوسرے پر منتقل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی یہ خواہش بھی نہیں ہوگی کہ محرکات کے درمیان وقفہ مزید کم ہو۔ نتیجتاً بچے آف لائن ہوتے ہی کہتے ہیں کہ وہ بور ہو گئے ہیں۔ Between stimuli. So then you have kids going offline and saying they're bored. ڈیجیٹل دنیا اثر ڈال رہی ہے، لیکن مطالعے کی عادت اور دماغ کی بہترین نشو و نما کی طرف واپس آنا نسبتاً ایک سادہ عمل ہے۔ The antidote to all this happening. ان سب کا سب سے سادہ اور خوبصورت حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مطالعے کی عادت لگوائیں اور ان کے لیے ایک پڑھنے والی زندگی بنائیں۔ والدین اور ٹیچر سب کو مدد کرنی ہوگی، انہیں مثال قائم کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو پڑھ کر سنانا ہوگا اور خود بھی مطالعے سے محبت کرنی ہوگی۔ Love it themselves. اور اس کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے فوائد معاشرے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ The power of deep reading. گہرے مطالعے کی طاقت ہماری انسانیت کی بنیاد ہے۔ جب ہم توجہ سے پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دماغ اور اپنی ذات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ذہن اور دلوں کو بدلنے کا عمل معاشرے کو تبدیل کرتا ہے اور ہمیں بہتر اور خوبصورت مستقبل تعمیر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ More beautiful futures. ترکوں کے ایبک قبیلے میں پیدا ہونے والا ایک آزاد بچہ جسے حالات نے غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا، بالآخر تاریخ کا دھارا موڑتے ہوئے تخت دلی تک جا پہنچا تھا۔ یہ داستان ہے قطب الدین ایبک کی، جنہوں نے برصغیر میں خاندان غلامان کی بنیاد رکھی اور دہلی سلطنت کی پہلی اینٹ رکھی۔ بی بی سی ریڈز میں آج سنیے غلامی سے حکمرانی تک کے اس غیر معمولی سفر کی مکمل کہانی، جسے تحریر کیا ہے مرزا اے بی بیگ نے، اور پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ یہ کوئی 850 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری افغانستان کے شہر غزنی میں اپنے مصاحبوں کے ہنر، عقل و دانش، حاضر جوابی اور شاعری سے لطف اندوز ہو کر ان میں انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ انعام پانے والوں میں ایک غلام بھی تھا جو اپنا صلہ پاتے ہی دربار سے نکلا اور سارا انعام ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات سلطان تک پہنچی تو انہیں اس فیاض شخص کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہوا۔ شہاب الدین غوری کو بتایا گیا کہ وہ تو انہی کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ اس واقعے کا ذکر غوری سلطنت کے مورخ منہاج السراج نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایبک کا دور دیکھا بلکہ ان کے بعد سلطان شمس الدین التتمش اور غیاث الدین بلبن کا دور بھی دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد غوری نے ایبک کی فراخ دلی سے متاثر ہو کر انہیں اپنے قریبی حلقے میں شامل کر لیا۔ قطب الدین کا تعلق ترک قبیلے ایبک سے تھا۔ وہ بچپن میں ہی اپنے خاندان سے بچھڑ گئے۔ کسی نے انہیں غلام بنا کر ایران کے شہر نشاپور میں قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ قاضی نے ان کے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کیا اور ان کی تعلیم اور فوجی تربیت کا خیال رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ قاضی فخر الدین کی موت کے بعد ان کے بیٹوں نے ایبک کو ایک تاجر کو بیچ دیا، جس نے انہیں افغانستان کے علاقے غزنہ یعنی غزنی لا کر سلطان محمود غوری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز میں پروفیسر معین احمد نظامی کا کہنا ہے کہ ایبک کا عروج تیزی سے ہوا۔ وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت جلد ہی بادشاہ کی نظروں میں آ گئے اور ترقی کرتے کرتے امیر آخر یعنی شاہی استبل کے سردار بن گئے۔ ایک غلام سے شاہی استبل کا نگراں بننے کے امکان کی وضاحت کرتے ہوئے دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر رحمہ جاوید کہتی ہیں کہ مسلم حکومتوں میں غلام کی حیثیت بازنطینی غلام سے بہت مختلف ہوتی تھی۔ مسلم دور میں غلاموں کا مرتبہ بعض اوقات جانشین کی طرح ہوتا تھا۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں عہد وسطیٰ کی تاریخ کے ماہر پروفیسر نجف حیدر کا کہنا ہے، جب محمد غوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے جس سے آپ کو آنے والے زمانے میں یاد رکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بہت ساری نرینہ اولاد ہے جو میرے نام کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر نجف حیدر کے مطابق ان کا اشارہ ان کے خاص غلاموں یلدوز، ایبک اور قباچہ کی طرف تھا۔
रहमा जावेद बताती हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने यल्दूस की एक बेटी की शादी ऐबक से और एक ही कबाचा से करवाई थी ताकि उनमें गहरा ताल्लुक़ कायम हो और वो एक दूसरे की मुखालफत के बजाय एक दूसरे की मुआवनत करें। प्रोफेसर निज़ामी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐबक को ग़ुलाम सल्तनत के बानी के तौर पर नहीं बल्कि इंडिया में तुर्क या ममलूक सल्तनत के बानी के तौर पर याद किया जाना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में मुहिमात का आगाज़ किया और तराइन की पहली जंग में उन्हें शिकस्त हुई। तराइन दिल्ली से मुल्हिक रियासत हरियाणा के करनाल ज़िले में तरूरी का इलाका है। इस शिकस्त के एक साल बाद 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी 1 लाख से ज़्यादा अफ़गान, ताजिक और तुर्कों पर मुश्तमिल बड़ी फ़ौज के साथ मुल्तान और लाहौर के रास्ते तराइन पहुँचे। उनका सामना पृथ्वीराज के 3 लाख घुड़सवारों और 3000 हाथियों की फ़ौज से हुआ। शदीद जंग के बाद चहमन यानी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हो गई। तराइन की यही जंग थी जिसमें कुतुबुद्दीन ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया और बादशाह को फतह मिली। सुल्तान ने कुतुबुद्दीन को कहराम और समाना का कमांडर बना दिया। मोइन अहमद निज़ामी कहते हैं कि इस जंग से बर्र सगीर में ऐबक के सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ। मार्च सन 1206 में एक बगावत कुचलने के बाद गजनी वापस जाते हुए दरियाए सिंध के करीब धमियाक के मुकाम पर किसी ने हमला करके गौरी को कत्ल कर दिया। तारीखदानों के मुताबिक सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने किसी को अपना जाननशीन मुकर्रर नहीं किया था। चुनांचे उनकी ज़िंदगी में उनका जो ग़ुलाम जहाँ जिस आला ओहदे पर फाइज था उसने वहाँ अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया। यूँ दिल्ली के हाकिम कुतुबुद्दीन ऐबक, मुल्तान के हाकिम नासिरुद्दीन कबाचा और गजनी के हाकिम ताजुद्दीन यल्दूस के दरमियान इक़्तिदार के लिए मुकाबला शुरू हो गया। ऐबक को अपनी फिरासत और सियासी हिकमत अमली के बल पर दूसरों पर गलबा हासिल हुआ और 25 जून सन 2006 को लाहौर के किले में उनकी ताजपोशी हुई। अलबत्ता उन्होंने सुल्तान का खिताब नहीं अपनाया और ना ही अपने नाम से कोई सिक्का जारी किया और ना ही अपने नाम से कोई खुतबा पढ़ाया। प्रोफेसर निज़ामी का कहना है कि ऐबक ने ये इसलिए किया कि उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी और उनका बतौर सुल्तान कबूल किया जाना मुश्किल था। बिलाखिर 1208 में वो गजनी गए जहाँ गौरी के एक जानशीन ने उनकी आज़ादी का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने सुल्तान का खिताब अपनाया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। उन्हें अहद वस्ता के दूसरे मुसलमान हुक्मरानों की तरह फ़न तामीर का भी शौक़ था। चुनांचे इंडिया में गौरी हुकूमत की कामयाबियों की याद के तौर पर उन्होंने दिल्ली में सन 1199 में कुतुब मीनार की बुनियाद डाली, जिसे उनके बाद शमसुद्दीन अल्तुतमिश के ज़माने में मुकम्मल किया जा सका। ये ईंट से तामीर दुनिया का सबसे बुलंद मीनार है, जिसकी 5 मंजिलें हैं और इस पर आयात कुरानी कंधा हैं। इसके साथ ही ऐबक ने कुव्वत इस्लाम मस्जिद की बुनियाद डाली, जिसकी बाकियात आज भी कुतुब मीनार के साथ देखी जा सकती हैं। अजमेर की फतह के बाद उन्होंने एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये शुमाली हिंद में बनने वाली पहली मस्जिद कहलाती है जो आज तक मौजूद है। दरअसल इसे जल्दी 2.5 दिन में खड़ा किया गया था, लेकिन फिर अफगानिस्तान के सूबे हिरात से ताल्लुक़ रखने वाले आर्किटेक्ट अबू बकर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया। ये 1199 में मुकम्मल हुई। इसे हिंदुस्तान में मुस्लिम तर्ज तामीर का पहला शाहकार कहा जाता है। सुल्तान बनने के बाद ऐबक ज़्यादातर लाहौर में रहे, जहां 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गए। उनकी तदफीन लाहौर ही में हुई। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।